मैं इस भाषा को सीखना चाहता हूँ, पर कैसे? यहाँ कोई इंग्लिश की कोचिंग सेंटर नहीं है, यहाँ तक कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। इट इज़ completely wrong यार। If you are watching my video, it means you have mobile. Okay, let it go. So मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे क्या करना होगा? और मुझे दोस्त बनाने होंगे। मैंने कहीं वीडियो पे देखा था कि आपको जोस्टोक एप्लीकेशन और कैमली एप्लीकेशन, वोलो एप्लीकेशन, इन सब एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक में मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज़ीरो हूँ, तो हाउ कैन आई स्टार्ट दिस? अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप सही वीडियो पे हैं, रुकिए इस वीडियो पे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माय जर्नी, हाउ डिड आई स्टार्ट। Basically, as you know that I'm from very backward area, there is no any environment to speak this language. But still, it was my dream and I did it little bit. And just I'm practicing on it, I'm working on it. Why am I making this video? To get confidence, and my purpose is to develop my confidence, and I want to become a fluent speaker. If you have same dreams, by connecting yourself with me, you can also develop your dream also. Okay, and confidence, अपने सपने को का विकास कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं. So my first question is here. First basic is, you have desire to learn this language, but how is a very tough question. Okay, how, कैसे? Because you don't have any process to learn this language, and process matters. And if you have an easy process, you can learn it very easy, and as uh, as much as possible, you can effort your energy over it, and you can learn very soon. Okay, so कहाँ से start करें? First of all, see yourself. What's your level and what's your command in this language? Suppose you have graduated, you have a good knowledge about word vocabulary. First, see yourself, look yourself, find yourself. What is your strong point? And keep, keep holding your strong point. That will help you to speak. That will give you confidence to speak. Okay. If your purpose is strong, अगर आपकी purpose strong है, so I think nobody can stop you to learn this language. If you have any specific goal to reach, suppose you want to learn this language just for speaking with someone, or you want to crack any interview. There are two types of languages, like professional language and like a common language. Common language, it means communication. And i- first you will have to decide it is common or it is professional. Professional, it takes time a little bit, but before learning professional things, you should focus on your common things. And if your common things is strong, you should go on professional way. Okay, so I'm talking about those people who are very beginner, just and you can say they are zero. They are zero and they want to become a hero. So you should focus on your strong point, keep it down, write down these things, and start your day with English, with this language. अपने दिन की शुरुआत, after wake up and get up, you should start your day with this language. When you do any activity, it means your day activity. After wake up and get up, you go to freshen up, and then you
After freshened up, you take warm water, you drink cool water as you wish. Okay, आपकी इच्छा अनुसार. And then what do you do? Uh, what's your habit? You should mention your habits. जो आप रोज दिन करते हो उस चीज को आपको फोकस करना है to translate in English. And talk this sentence before doing any activity every day. कोई भी काम करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, थोड़ी सी बात करना है. चलो मुझे ये करना चाहिए, है ना. कमांड योर सेल्फ, अपने आप को कमांड देने हैं. ओके, एंड बाय कमांडिंग योर सेल्फ यू कैन गेट फ्लुएंसी इन ओवर इट. इस पर क्या कर सकते हैं आप, फ्लुएंसी प्राप्त कर सकते हैं. सो इट इज योर फर्स्ट step to involve yourself in this language. So how is this, is it useful or not? You should write in the comment box, so that I can understand the topic, the questions I have raised here, that is useful. And then another is here to read something which is related with your activity. सभी शब्दों को आपको नहीं पढ़ने हैं, सभी वोकेबुलरी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड दोज वर्ड्स, दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. और आप जो भी डेली एक्टिविटी में करते हैं, दोज आर कॉमन थिंग्स एंड दैट ही जो हमेशा क्या होता है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं टपक ही जाता है. तो ऐसी चीज़ों को हमेशा फोकस में रखें, सो दैट बाय सीइंग, बाय विजुअलाइजिंग दोज थिंग्स, तुरंत से आपके माइंड क्या कर ले, उसको कनेक्ट कर ले. ओके, so this is how you can improve your vocabulary. And how to frame sentences, third question is here, how to frame sentences. सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको सेंस पे जाना होगा कि वहाँ पर दो प्रकार की सेंस होती हैं. फर्स्ट होता है एक्शन वर्ड्स एंड नॉन एक्शन वर्ड्स. सपोज दैट आई एम अ टीचर, आई एम अ ब्लॉगर, यू आर अ लर्नर, यू आर अ प्रोफेशनल मैन. तो ये सब क्या है, नॉन एक्शन है. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश आपको नॉन एक्शन पर काम करना है. और जब आपकी नॉन एक्शन कंप्लीट हो जाती है, व्हेन यू बिकम हैबिचुअल टू स्पीक नॉन एक्शनल sentences, and you are very confident on it to speak non एक्शनल sentences. इसके बाद आपको करने हैं थोड़ा थोड़ा आपके हैबिट वाली जो प्रेजेंट सिंपल होती हैं, आपके हैबिट से रिलेटेड होती हैं. तो फ्रेम योर सेंटेंसेस दैट यू डू एवरी डे. जो चीज़ें आप रोज दिन करते हैं उसको क्या करना है, आपको फ्रेम करना है. जैसे आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ. आई ईट, मैं खाता हूँ. आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ. आई स्लीप एट लेट नाइट, आई स्लीप 10 after 10:30, मैं 10 बजे के बाद सोता हूँ. इस तरह के सेंटेंसेस को आपको पढ़ने हैं. आफ्टर दैट व्हेन यू गॉट कॉन्फिडेंस, ओके, जब आप कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट लेवल इज हियर टू लर्न अबाउट कंजक्शन. कंजक्शन आपको हेल्प करेंगे आपके सेंटेंस को लंबे खींचने के लिए. सपोज आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडिंग. तो इसमें दो चीज़ें हो गया, स्टडिंग और गोइंग, दोनों एक वर्ब है, दोनों एक एक्शन है. ओके ना. तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को लंबा खींचना है. तो इसमें क्या करेगा, कंजक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा. प्रीपोजिशन भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है. तो मैं कंजक्शन करूँगा कि जैसे दैट हो गया, दैट कंजक्शन हो गया, आफ्टर दैट हो गया. तो इसमें आप करेंगे कि आप आफ्टर वेकअप एंड गेट अप, आई फ्रेशेंड अप, आफ्टर दैट आई कम बैक, आई टेक एक्सरसाइजेस, ओके, देन आई ड्रिंक लिटिल वाटर, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा पानी पीता हूँ. आफ्टर दैट आई टेक ब्रश, अगर आप ब्रश नहीं किए हो तो ब्रश करते हो, या तो डायरेक्ट आप बोल दो आई ब्रश. ओके, आई ब्रश, देन आई गो टू बाथ. तो ये देन शब्द हो गया, दैट शब्द हो गया, दीज आर कंजक्शन. ओके. एंड सपोज बिकॉज शब्द का यूज करते हैं कि जैसे आई टेक एक्सरसाइज बिकॉज
आई कैन बिकम अ हेल्दी पर्सन। तो ये बिकॉज शब्द जो है यहाँ पर एक कंजक्शंस के रूप में यूज किया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस व्हेन यू फ्रेम, you can get confidence in this language. Okay, suppose you have done it very well, but you have not much more knowledge about uh, how to translate stories. तो स्टोरीज ट्रांसलेट करने के लिए आपकी वोकेबलरीज और एक्शन वर्ब पर बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो आप स्लोली स्लोली छोटी स्टोरी बुक पढ़ना शुरू करें, जैसे बाल मित्र हो गया, एंड और आपके आते हैं चंपक आते हैं, और मतलब छोटी छोटी इंग्लिश की स्टोरीज होती हैं। आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास इन सब इनकी इंग्लिश की बुक्स को आप उठाएंगे तो वहाँ छोटी छोटी सेंटेंसेस वाली वाक्य होते हैं। यू कैन ट्रांसलेट देम वेरी इजीली। ओके, आई डिड इट दिस इज वे, आई एम टॉकिंग हियर माई जर्नी, हाउ डिड इट। ओके, हाउ मैंने कैसे इसे कंप्लीट किया, एंड स्टिल आई एम लर्निंग नाउ, माई लेवल इज लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, मेरी लेवल जो है कुछ अलग है क्योंकि मैं बड़ी पुस्तकें पढ़ता हूँ। So I am comfortable, but when I was beginner that time I was reading small books that were Champak. I think in the market, in book stationery you can go and buy Champak. हर महीने चंपक के एडिशन आते रहते हैं, तो आप हर महीने त्योहारों से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टार्ट रीडिंग चंपक, यू कैन फील वेरी हैप्पी देयर, क्योंकि वहाँ कार्टून जैसी इमेजेस होती हैं जो आपकी आंखों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आपकी चाइल्डहुड बचपना की हरकत को याद दिला देते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी फनी मोमेंट by reading you can take। Okay, so now you use mobile and there are some cartoon videos, there are movies, there are English subtitled movies, so watch those movies and react on it। You think when you were child that time you were not able to understand all things, but आपकी माँ जो बोलती थी उस पर रिएक्ट करते थे। रिएक्ट इट मीन्स माँ बोलो माँ, तो बोलते माँ, पापा, चाचा, नाना, ओके, बाबा। इस तरह से आप सुन सुन करके उस पर रिएक्ट करते थे, एंड नाउ यू आर वेरी फ्लुएंट टू स्पीक। इवन बिफोर स्पीकिंग you don't think about your words। The same way in this language it happens। Okay, I hope you are getting my points, still you are watching my video, it means you have zeal to learn this language। मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूँ कि हाउ टू आपको इसमें वर्क करना है, हाउ डू यू गेट इट वेरी वेरी सुन, क्योंकि विदाउट गाइडलाइंस इफ यू आर जंप एनी पॉइंट, आप बिना गाइडलाइंस के अगर किसी तालाब पे जंप मारेंगे तो यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इसीलिए इसमें जो भी आपकी प्रोसेस है कि कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपने मूवी देख लिया, अब रिएक्ट कैसे करें। कि मूवी में क्या होती हैं, इमेजेस चलती रहती हैं और आपको कोई वोकेबलरी अगर डायरेक्ट हिंदी मीनिंग्स नहीं आ रही हैं तो उनके काम को देखते हुए यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग देयर, क्या वहाँ चल रहा है। तो आप उसको ये लगा लेते हैं कि ऐसे काम जब होते हैं, ऐसे एक्टिविटी होते हैं तो इस वोकेबलरी को बोला जाता है। नाउ व्हेन यू गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक दिस काइंड ऑफ verb, you can speak there is no any problem। and when you make any mistake in front of people and people are laughing you, it means that time you can correct your words कि मैंने जो बोला वो गलत बोला। तो हो सकता है यू कैन आस्क देम, आप उनको पूछ सकते हैं ना कि मैंने कौन सी गलत बोला, तो वो बोले नहीं बाबा यहाँ ये चीज़ को यूज करना चाहिए, आपने इस चीज़ को यूज किया, देयरफॉर पीपल आर लाफ, पीपल मेकिंग यू लाफ, पीपल क्या कर रहे हैं, आपको मजाक बना रहे हैं। तो if people are laughing to you it means you are working on it। अगर लोग क्या कर रहे हैं, आप पर हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस जर्नी पे उतर चुके हैं
और लोग आपको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि नाउ ही इज लर्निंग इंग्लिश। सो है ना, मेकिंग मिस्टेक आल्सो टीचर्स, एंड मेकिंग मिस्टेक इज क्या है, बेस्ट वे टू लर्न। बिना गलती करे आप सीखना चाहेंगे तो आप उसके डीप के जो सेंस हैं उसको नहीं जानेंगे। लोग हमें सिखाते हैं, अगर है ना, मम्मी को अगर बोलते हैं मम्मा, 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 मामा, तो दो तरह के होते हैं ना, मम्मा एंड मामा। तो इससे ये निकल जाता है कि किसको मामा बोलना है, किसको मम्मा बोलना है। ओके, तो थोड़ा सा हमारी जो स्लैंग्स होती हैं वो स्लैंग्स हमें डिफाइन करती हैं कि एक्चुअली मामा बोल रहे हैं या मम्मा बोल रहे हैं। तो उसी तरह से आपका क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड व्हेन द सेम वर्ड्स व्हेन यू speak with other people, they will not make you laugh, that time we feel very happy। जब उसी शब्द को आप दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो लोग हंसी आपको नहीं बनाएंगे, दे कैन अंडरस्टैंड कंफर्टेबली, तो आप भी बोलेंगे अच्छा उस दिन मैंने गलत बोला था। तो दिस इज माई स्टेप कि कैसे मूवी को देखें, और जो चीज़ें आपको समझ में आती है बीच बीच में ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट यू कैन डेवलप habit to speak in front of people, before the people। So it is the process that you would have to follow it, and the next step is here to explain your day, night, your past, present, and future। When you explain all things, it wo- it would very helpful to you। जब आप थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आप क्या करते हैं, अब क्या करने वाले हैं। ओके, इट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन सबको क्या करना है, आपको खुद से टॉक करना है। सेल्फ टॉक मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न दिस लैंग्वेज। सेल्फ टॉकिंग इट रिड्यूस आर स्ट्रेस। अगर आप बार बार सोचते सोचते परेशान हो चुके हैं कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, माई इंग्लिश इज वेरी पुअर, पीपल आर मेकिंग मी लाफ, सो मुझे यही स्टॉप कर देनी चाहिए, बट आई विल से समथिंग अबाउट दोस पीपल, पीपल आर मेकिंग यू लाफ, इज इट राइट? ओके, क्या ऐसे ही है? इफ इज इट राइट, तो उन लोग सिर्फ हंस ही सकते हैं और तुम्हें दे क्या सकते हैं। अगर हंस सकते हैं तो अगर कोई ऐसे फ्रेंड हो के मुझ पर अगर हंस रहे हो तो मुझे सिखा दो यार इंग्लिश। इट मीन्स उसे खुद नहीं आता, एंड ही इज लाफिंग टू यू, एंड यू आर स्टॉपिंग योर ड्रीम्स टू लर्न दिस लैंग्वेज। थिंक अबाउट दोस पर्पस। जब आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, व्हेन यू कैन नॉट कंप्लीट दिस थिंग्स, व्हाई डिड यू थिंक टू लर्न दिस लैंग्वेज? आपने सोचा है तो आपको इस पर काम करना, आप इसको फुलफिल करना है। थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। व्हाई पीपल मेकिंग यू लाफ, पीपल इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। तो बी पॉजिटिव इन दिस जर्नी, क्योंकि यू आर अलोन हियर टू लर्न दिस लैंग्वेज। आई डिड इट, यू नो, my no one any friend to speak this language with me, but still I'm focusing my communication language. Communication doesn't mean in Hindi or English, it can be anything, but English is a digital language, and this is a digital era. So it is it must important for us to update our mind according to this age, according to this age. So I think still you are watching my videos, definitely you are getting my all points on what is the process to learn this language. When you involve this language in your daily activity, you can speak, nobody can stop you. And after working on it 1 month, 2 months, 3 months, you can feel very happy now, happy. If you are watching my video still, हाउ इज द प्रोसेस, यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने तो वही चीज़ बताया है इस वीडियो में जो मैंने महसूस किया है, और मेरी महसूस और मेरी फीलिंग्स अगर आपको हेल्प करती है तो आई एम वेरी लकी बॉय कि आई एम हियर टू हेल्प यू टू स्पीक दिस लैंग्वेज। ओके, मैंने कोई बड़ी संस्थाएं ज्वाइन नहीं की टू स्पीक दिस लैंग्वेज, जस्ट आई डिड इट बाय बाय प्रैक्टिसिंग। और एक चीज़ तो है फाइनली, इस वीडियो में एक ही चीज़ आता है, प्रैक्टिस। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्रैक्टिस है आपके पास।
और प्रैक्टिस का पूछ पकड़ लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये समय लेता है पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ disturbance to speak you. A person who have really a desire to speak it, definitely nobody can stop. Believe in yourself and think about your strong point. What's your strong point that you can represent in the world? आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं जो इस दुनिया में आप उसको शो अप कर सकते हैं? तो शो अप करने के लिए कम्युनिकेशन मैटर्स। सो आप इंटेलिजेंट हैं बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज, पीपल विल थिंक अबाउट यू, यू आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन। सो आप अपने माइंड को अपडेटेड रखिए एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। just do practice 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 make us perfect, practice make us perfect and your practice definitely क्या करेगी, आपको सक्सेस दिलाएगी। जैसे बोलते हैं हमारी अभ्यास हमारी सफलता रंग लाएगी। only do practice and if you want to talk to me, definitely you write in the comment box also and I will give you my WhatsApp number and there you can call me and we can practice together also. Okay, I'm just an English blogger. When I go outside, when I get chance to speak this language, I always speak English so that I can improve my communication language also. I'm not a teacher, I'm not a professional man, just I'm learning this language. And by watching my videos, you can also improve your communication language. So that is all about my journey. And if you like my journey, you can follow in your life and try to learn, try to follow this journey. And if is it helpful, no, don't forget to tell me so that I can suggest other people कि my journey जो है, मेरी steps जो है, it is really very useful for everyone. Okay, so thanks for watching this video. See you in the next video. If you didn't follow and subscribe my channels, to go and uh, click bell button and subscribe it so that when I upload you can get notification and you can watch as soon as possible. So bye bye, take care, keep smiling, keep learning, keep in mind practice makes us perfect. So once again, thanks for watching this video.